ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 14 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਪੀਸੀਐਸ, ਐਸਐਸਸੀ, ਸੀਜੀਐਲ, ਸੀਐਚਐਸਐਲ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਦੀਲ ਜਲ ਦਾਰੂ ਖਾਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਟਾਈਮਲੈਸ ਮਹਿੰਦਰਾ। ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਚੁਅਲ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਰੂਮ ਫਿਊਚਰ, ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਦੁਆਰਾ ਵਰਚੁਅਲ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਰੂਮ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਤੀਸਰਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 1 ਫੈਬਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਬਜਟ ਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 112 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਸ ਬਜਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ DRDO ਦੁਆਰਾ ਹਿਮਤਪਾਕ ਹੀਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਔਰ ਸਨੋ ਮੈਲਟਰਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਲਈ, ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਸਰੋ ਦੁਆਰਾ 100 ਅਟਲ ਥਿੰਕਰਿੰਗ ਲੈਬਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ STEM ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, BSF ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। BSF ਦੇ 13 ਜਵਾਨ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ? ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਬਰਥ ਸੈਂਟੀਨਰੀ ਦੇ ਲਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤਕਰੀਬਨ 4097 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ WhatsApp ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕੁੰਭਕੋਨਮ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। MSME ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਖਾਦੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ KVIC ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਓ ਡੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੋਡ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 32ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਵੀਕ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਥੀਮ ਰਹੇਗੀ ਸੇਫ ਯੋਰਸੈਲਫ ਟੂ ਸੇਵ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇसी ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਮੰਥ ਜੋ ਕਿ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੋ ਯੋਰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੁਆਰਾ ਨੋ ਯੋਰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਈਨੀਅਲ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਕੋਸਟਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਵਿਜਿਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਲੋਂਗ ਦ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਟ 13 ਮੇਜਰ ਪੋਰਟਸ। ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੌਨ ਢਾਕਾ ਮੈਰਾਥਨ 2021 ਔਰ ਪੁਸ਼ਪਾ ਭੰਡਾਰੀ ਆਫ ਨੇਪਾਲ ਵੌਨ ਵੂਮੈਨਸ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਇसी ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਮੀਤ ਡੋਲਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ, ਵੂਮੈਨਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4ਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਗਮੀਤ ਡੈਲੀਮਾ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਟਰਨ
जर्नलिस्ट तिरुपति कुतुंबा राव, वैटरन जर्नलिस्ट तिरुपति कुतुंबा राव की रीसेंटली डैथ हो गई है। इन्हों पद्म श्री दिता गया सी सन 2002 दे विच। एस्ट्रोफिजिसिस्ट शशि कुमार मधुसूदन चित्रे, शशि कुमार मधुसूदन चित्रे एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट सीगे, इन्हां दी भी रीसेंटली डैथ हो गई है और ये पद्म भूषण दिता गया सी इन्हां नूं 2012 दे विच। प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद इंडिया के प्रेजिडेंट प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिते गए। 30 NRI नूं इस अवार्ड दे नाल और इंडियन ओरीजन लोकां नूं दे नाल सन्मानित किया गया और इस अवार्ड दे लई सूरीनामे दे प्रेजिडेंट नूं भी और न्यूजीलैंड के मिनिस्टर प्रियंका राधा कृष्णन नूं भी यह अवार्ड दिता गया। 5 ईयर ओल्ड प्रेशा खेमानी जो कि 5 साल की एक लड़की है, पुणे तो बिलोंग करती है। इसका नाम इसने की करे एक रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिस दे विच इसने 150 कंट्रीज़ के नाम दिते ने उसकी कैपिटल्स के नाल और उन्होंने फ्लैग्स नूं भी आइडेंटिफाई किया सिर्फ 4 मिनट 17 सैकेंड के विच। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक कमेटी बनाई गई है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ RS शर्मा। बीजेपी दिल्ली प्रेसिडेंट आदेश गुप्ता बीजेपी दिल्ली प्रेसिडेंट ने इन्हों द्वारा बुक रिलीज की गई है, मोदी इंडिया कॉलिंग, रिटन बाय विजय जॉली। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्तुगल के ने हाईएस्ट गोल स्कोरर बने ने। इन्होंने किसका रिकॉर्ड बराबर किया है तो जोसफ बीकन का रिकॉर्ड। इस तो इलावा यह ओनली प्लेयर ने जिन्होंने घट्टो घट्ट 15 गोल किए ने इन ईच ऑफ द लास्ट 15 सैशंस ऑफ टॉप 5 लीग्स। नेक्स्ट है मणिपुर चीफ मिनिस्टर N बिरेन सिंह द्वारा कोसफॉर्म वैबसाइट नूं लॉन्च किया गया है। A community based sustainable forest management for water resource conservation in मणिपुर दे विच वाटर कंजरवेशन और फॉरेस्ट मैनेजमेंट दे लई इस वैबसाइट नूं लॉन्च किया गया। यूपी रिलेटेड 2 इंपोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस कीतियां सी। एक तो आरोग्य मेला कित्थे लगाया गया, फारूखाबाद आरोग्य मेला इनोग्रेट किया गया यूपी के चीफ मिनिस्टर द्वारा और यूपी के चीफ मिनिस्टर द्वारा ही चोरा चोरी शताब्दी सैलीब्रेशन अनाउंस की गई है, जिस दे अंडर 1 साल के लिए चोरा चोरी इंसीडेंट जो कि 5 फरवरी 1922 में होया सी उसनूं कमैमोरेट करने के लिए 1 साल इसकी सैलीब्रेशन चलणगियां। 4 फरवरी तो शुरू किया जा रहा है, 1 साल के लिए लगातार यह चलेगा, यानी कि 4 फरवरी 2021 तो 4 फरवरी 2022 तक। टू मार्क द 100th एनीवर्सरी कदों होएगी 2022 दे विच। ठीक है जी। हुण ये जिन्नी न्यूज़ आप डिस्कस कीतियां ने, कुछ बच्चे पंजाबी दे विच डिमांड कर रहे सी तो कल आप डिस्कस भी किया कि पंजाबी दे विच शुरू कर रहे हैं। कल की PDF दे विच भी पंजाबी दे विच तुहानूं मैटीरियल मिल जाएगा और अज की PDF दे विच भी तुहानूं यह मैटीरियल पंजाबी दे विच मिलेगा, प्लस PPT दे विच भी तुहानूं दिखा देंगे इस तरीके नाल यह मैटीरियल होएगा। हर एक PPT दे विच तुहानूं इस तरीके का मैटीरियल मिल जाएगा। ठीक है जी। पूरा पंजाबी दे विच डिटेल दे विच जिस तरीके नाल इंग्लिश डिस्कस की है उसी तरीके नाल पंजाबी दे विच लिखा होया इत्थे। जो लोग पंजाबी च स्टडी करना चाहते हैं वो इत्थों स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। हुण चलते हैं स्टैटिक पोर्शन दे वाल। स्टैटिक पोर्शन दे विच एक्सरसाइजिज शुरू कीतियां सी आपां ने कल तो, अज भी सेम डिस्कस करांगे। एक स्लाइड आपां 2 दिन डिस्कस करांगे। तो युद्ध अभ्यास USA दे नाल ही वज्र प्रहार और USA दे नाल ही कोप इंडिया। ठीक है जी। इस तो इलावा डिस्कस की अपने टाइगर ट्रंप। ठीक है जी। ये 4 एक्सरसाइजिज USA नाल इंडिया कंडक्ट करता है, बायलैटरल एक्सरसाइजिज। फ्रांस की अगर आप गल करते हैं तो शक्ति वरुण और गरुड़ एक्सरसाइज याद रखांगे फ्रांस के नाल। नैक्सट चलते हैं अज की फर्स्ट न्यूज़ के वाल। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करांगे। तो विच डे इज ऑब्जर्वड एज नैशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? स्किप हो गया सी अपना डे। यह डे ऑब्जर्व किया गया सी 11 जनवरी नूं।
11 जनवरी ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਡੇ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ठीक है, इसी ਦੇ ਨਾਲ दो इंपॉर्टेंट डेज होर डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहणगे। सब तो पहले 11 जनवरी ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਡੇ। ठीक है, इसी ਦੇ ਨਾਲ जनवरी मंथ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ मंथ। ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा ਆਪਾਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੈਪਟੈਂਬਰ 2020 ਨੂੰ पोषण माह या न्यूट्रिशन मंथ ਦੇ ਨਾਲ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ठीक है, कई एग्जाम्स ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन भी पूछा गया कि ਕਿਹੜੇ ਮੰਥ ਨੂੰ पोषण माह के रूप में ऑब्जर्व किया गया, तो सैप्टेंबर मंथ ਨੂੰ पूछा गया। तो इसी तरीके नाल नैशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग मंथ किहड़ा मंथ है, जनवरी का। ठीक है जी, इसी नाल 11 जनवरी ਨੂੰ ही डेथ एनिवर्सरी सी सैकेंड प्राइम मिनिस्टर की, इंडिया के सैकेंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की डेथ एनिवर्सरी भी 11 जनवरी ਨੂੰ सी 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा एक उज्बेकिस्तान गए सी ताशकंद सुनिया होएगा। तो ताशकंद जी सिटी है उत्थे इन्हां दी डेथ हुई सी। और ऐसे प्राइम मिनिस्टर अगर गल करांगे दुनिया की सब तो वड्डी डेमोक्रेसी दे दूसरे प्रधानमंत्री किसी होर देश की विजिट ते जाके और उत्थे इन्हां दी डेथ हो जानी, वो भी एक समझौता साइन करन तो बाद, एक पीस समझौता जो लड़ाई का समझौता सी उस दे विच साइन करन तो बाद उन्हां दी डेथ हो जानी। एक काफ़ी वड्डी मिस्ट्री है। और याद रखांगे इस करके सैकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਬਰਥ ਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਜयंती ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਥ ਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1904। ਔਰ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਮੰਥ यह 18 जनवरी तो 17 फरवरी तक ऑब्जर्व किया जाएगा। 18 जनवरी तो 17 फरवरी तक नैशनल रोड सेफ्टी मंथ ऑब्जर्व किया जाएगा। याद रखांगे। इस तो इलावा अगर कल के दिन की गल करते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने भी 5 साल पूरे किए ने कल के दिन 13 जनवरी 2021 ਨੂੰ, क्योंकि इस स्कीम ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ इस स्कीम ਨੂੰ शुरू किया गया और 5 साल पूरे किए ने। याद रखांगे। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मेकिंग अ जर्नल अ हिमालयन इको। एक बुक जारी की गई है मेकिंग अ जर्नल अ हिमालयन इको। इस बुक के राइटर कौन ने? द फर्स्ट ऑप्शन कोसाम हिमालय सिंह द्वारा एक बुक लिखी गई मेकिंग अ जर्नल अ हिमालयन इको। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं बाकी ऑप्शंस की, तो बाकी ऑप्शंस दे विच निधि वधेरा द्वारा रोमांसिंग टारगेट्स आप डिस्कस की सी बुक रोमांसिंग टारगेट्स नाम की बुक किन्ना द्वारा जारी की गई? निधि वधेरा द्वारा इस बुक नूं लिखा गया। ठीक है जी। अमृत राज कुछ दिन पहले ही डिस्कस की थी। अमृत राज की बुक इंडियन आइकन अकल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड, इंडियन आइकन अकल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड, इंडियन आइकन अकल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड। इस बुक नूं किन्ना द्वारा लिखा गया सी? अमृत राज द्वारा। आर गिरीधरन की गल करते हैं तो इन्हां द्वारा जी बुक लिखी गई सी राइट अंडर आवर नोज। RBI के जनरल मैनेजर ने राइट अंडर आवर नोज आर गिरीधरन द्वारा। अनुराधा घोष आफ्टर लाइफ ऑफ साइलेंस किन्ना द्वारा लिखी गई? अनुराधा घोष द्वारा। नेक्स्ट है FSS फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम एक लीडिंग ग्लोबल पेमेंट प्रोसेसर है। इस द्वारा पार्टनरशिप की गई किहड़े बैंक के नाल टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन अमंग अंडर डिजर्वड एंड अनबैंक्ड सैगमेंट्स। बेसिकली कि जेडे इलाकियां दे विच बैंकिंग सर्विसेज नहीं है उन्हां इलाकियां तक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाउण दे लई FSS ने किहड़े बैंक दे नाल पार्टनरशिप की? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक दे नाल। 5th ऑप्शन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक दे नाल पार्टनरशिप की है। ठीक है जी। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कदों बनाया गया सी पूछा जा सकता है? तो 2018 दे विच। इसका हैडकुआटर कित्थे है? तो न्यू दिल्ली दे विच है।
इस दे हैड कौन ने? तो जे वेंकटा रामू, उस दिन पहले भी डिस्कस किए सी, जे वेंकटा रामू इस दे हैड ने। ठीक है जी, सारी चीज़ां याद रखांगे, इंपोर्टेंट रहणगे। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं बंधन बैंक रिलेटेड, आप कुछ दिन पहले डिस्कस किया सी आर्मी के नाल मिलकर इन्होंने शौर्या बैंक अकाउंट के रिलेटेड एग्रीमेंट साइन किया सी। ठीक है, कर्नाटका विलास ग्रामीण बैंक के रिलेटेड अगर कुछ दिन पुरानी न्यूज़ डिस्कस करते हैं तो कृषि ओडी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी शुरू किया गया सी। कृषि ओडी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी शुरू किया सी कर्नाटका विलास ग्रामीण बैंक ने। ठीक है, हुण एक कर्नाटका विलास ग्रामीण बैंक रिलेटेड न्यूज़ भी है वो डिस्कस करते हैं। इस तो इलावा एक आरबीआई रिलेटेड है। तो कर्नाटका विलास ग्रामीण बैंक द्वारा MOU साइन किया गया जय किसान दे नाल। जय किसान एक रूरल फोकस्ड फिनटेक प्लेटफॉर्म है, इस दे नाल एग्रीमेंट साइन किया टू एक्सपेंड असेस टू द फाइनेंशियल सर्विसेज टू पीपल। लोगों तक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुँचाने के लिए कर्नाटका विलास ग्रामीण बैंक ने जय किसान दे नाल एग्रीमेंट साइन किया। कर्नाटका विलास ग्रामीण बैंक का हैडकुआटर कित्थे है? तो धरवड़ कर्नाटका दे विच इसका हैडकुआटर है। आरबीआई रिलेटेड याद रखांगे, सिंपली न्यूज़ अपने लिए डाटा नहीं पूछा जाएगा, सिंपली याद रखांगे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है जी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किन्ना द्वारा जारी की जाती है? तो यह आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। ठीक है जी, इसने जारी की है जिसके अंडर जी NPA है, ये पूछा जा सकता है NPA की चीज़ है? तो NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि जो कुछ लोग बैंक तो लोन लै लेंदे ने तो उस तो बाद वापसी नहीं करते तो उन्होंने NPA कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है। और इन्होंने कहा कि जी इस साल सितंबर 2020 के विच नॉन परफॉर्मिंग एसेट की रिपोर्ट सी 7.5% सी, ये लोग वध जाएंगे 13.5% तक चली जाएगी अगले सितंबर तक। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी बिकम्स सेकंड इंडियन कंपनी टू क्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 12 ट्रिलियन। 12 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस करने वाली दूसरी इंडियन कंपनी केड़ी बनी है? तो TCS बनी है। ठीक है, अगर आप गल करते हैं कुछ महीने की पहले ही आप डिस्कस किया कि रिलायंस पहली ऐसी कंपनी बनी है इंडिया की जिसने 12 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्रॉस किया। ठीक है, तो हुण रिलायंस तो बाद TCS दूसरी कंपनी बन चुकी है जिसने 12 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्रॉस किया। ठीक है, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज काफ़ी इंपोर्टेंट कंपनी है, टाटा वालों की याद रखांगे। इस तो इलावा बजाज रिलेटेड एक चीज़ इंपोर्टेंट याद रखांगे कि जी बजाज ऑटोज़ है, आप कुछ दिन पहले इन्होंने रिलेटेड भी डिस्कस किया कि बजाज ऑटोज़ 1 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस करने वाली पहली 2 व्हीलर कंपनी बनी है। 2 व्हीलर कंपनी यानी कि 2 व्हीलर बनाने वाली पहली ऐसी कंपनी जिसने 1 लाख मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस किया है, इंडिया की पहली कंपनी बनी है। ठीक है जी, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन नेम्ड एज ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ BCCI फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड मीटिंग्स। ICC है, पहले तो ICC के फैक्ट इंपोर्टेंट बनेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कई बार डिस्कस किए ने अपने 1909 के विच बनाया गया सी, दुबई के विच हैडकुआटर है, ग्रैग बार्कले हैड ने और यह न्यूजीलैंड तो बिलोंग करते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट रहेंगे। दूसरी चीज़ BCCI मुंबई के विच हैडकुआटर है, सौरभ गांगुली इस दे हैड ने और राजीव शुक्ला इस दे वाइस प्रेसिडेंट ने रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, अपना आंसर है जय शाह जो कि BCCI दे सैक्रटरी ने इन्हों ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया ICC की बोर्ड मीटिंग्स के लिए। ठीक है जी, इस तो इलावा जी इंडिया के होम मिनिस्टर ने अमित शाह, उन्होंने बेटे ने जय शाह। ठीक है जी, याद रखेंगे। इस तो इलावा अगर चेतन शर्मा की गल करते हैं, चेतन शर्मा रिसेंटली डिस्कस किया सी मैनस सिलैक्शन कमेटी, जी इंडिया की मैन सिलैक्शन कमेटी है उसके हैड बनाए गए सी चेतन शर्मा। ठीक है, याद रखेंगे।
नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ओलंपिक चैंपियन, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस कैलिटी, एग्नेस कैलिटी हंगरी तो बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपना 100th बर्थडे मनाया 9 जनवरी नू, 9 जनवरी नू। शी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। बेसिकली हर एक पर्सन की जी उम्र होंगी है अपने लिए इंपोर्टेंट नहीं है, पर यह पर्सन की ने, ये पर्सन ने ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ओलंपिक चैंपियन। अगर आप गल करते हैं 1956 की, 1956 की समर ओलंपिक्स दे विच गोल्ड मैडल जितया गया सी इन्हां द्वारा। नाम है इन्हां दा एग्नेस किलीती, एग्नेस किलीती। ठीक है, दूसरी चीज़ किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं, तो ये हंगरी तो बिलोंग करते हैं। हंगरी कैपिटल बुडापेस्ट है, ये याद रखांगे। इस तो इलावा इन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया 9 जनवरी नूं। ठीक है, ये किहड़ी स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं, ये जिमनैस्टिक तो बिलोंग करते हैं। जिमनैस्ट दे विच इन्होंने गोल्ड मैडल जितया सी 1956 दे विच। ठीक है, वूमेन ने इंपोर्टेंट रहेगा, नाम याद रखांगे। 100 ईयर्स की एज पूरी की इन्होंने, और ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ओलंपिक चैंपियन ने। ठीक है जी, कमेंट बॉक्स के विच टैनिस के एक परसन का नाम दसना है जिन्होंने की दिता गया अर्जुन अवार्ड दिता गया। हॉकी के 2 परसन का नाम दसना है जिन्होंने अर्जुन अवार्ड दिता गया। शूटिंग के परसन का नाम दसना है जिन्होंने अर्जुन अवार्ड दिता गया 2020 के विच। ठीक है जी, कमेंट बॉक्स के विच आंसर चाहिए। नेक्स्ट है पुलित्ज़र प्राइज विनर ऑथर एंड जर्नलिस्ट नील शाहीन। नील शाहीन ने जिहड़े इन्हों पुलित्ज़र प्राइज दिता जा चुका। ठीक है, ये ऑथर ने, जर्नलिस्ट ने। इन्हों की बुक करके इन्हों पुलित्ज़र प्राइज और नैशनल बुक अवार्ड दोनों इक्को साल दे विच दिते गए सी। इन्हों की रिसेंटली डैथ हो गई है, और बुक का नाम सी अ ब्राइट शाइनिंग लाई जॉन पॉल वैन एंड अमेरिका इन वियतनाम। अ ब्राइट शाइनिंग लाई जॉन पॉल वैन एंड अमेरिका इन वियतनाम। काफ़ी चर्चा दे विच रही सी ये बुक उस टाइम, और इंपोर्टेंट रहेगी। तो इन्हों किहड़े साल दे विच पुलित्ज़र प्राइज और नैशनल बुक अवार्ड दोनों दिते गए सी, तो 1989 दे विच, 1989 दे विच। ठीक है जी, हाल ही दे विच इन्हां दी डेथ हो गई है। नाम इंपोर्टेंट बनेगा नील शाहीन, नील शाहीन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ टॉप द हरून्स टॉप 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज लिस्ट। टॉप 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट दे विच किहड़ी कंपनी द्वारा टॉप किया गया, तो अपना आंसर होएगा एप्पल। फर्स्ट ऑप्शन एप्पल द्वारा इसनूं टॉप किया गया। ठीक है जी, तो हुण बाकी ऑप्शनस की अगर आप गल करते हैं, बाकी ऑप्शनस की अगर आप गल करिए तो काफ़ी इंपोर्टेंट फैक्ट्स ने डिस्कस करते हैं। सब तो पहले इसी न्यूज़ में पूरी डिटेल में डिस्कस करते हैं कि टॉप 500 कंपनीज दे विच एप्पल टॉप पे है। ठीक है, इंडिया के विचों किहड़ी कंपनी टॉप पे है, तो रिलायंस ओवियस है, रिलायंस टॉप पे है। ओवरऑल अगर रैंकिंग की गल करते हैं 500 के विचों किन्नवां रैंक है, तो 54वां रैंक है, 54। ठीक है, टोटल इंडिया की 11 कंपनीज इस लिस्ट के विच ने। 500 के विच सिर्फ 11 कंट्रीज ही इंडिया दी, 11 कंपनीज ही इंडिया दी ने। अगर ओवरऑल नंबर ऑफ कंपनीज के हिसाब के नाल इंडिया की रैंकिंग की गल करते हैं, तो इंडिया 10वें नंबर पर है, इंडिया 10वें नंबर पर है। ठीक है जी, सारे फैक्ट इंपोर्टेंट बनने, याद रखांगे। नेक्स्ट है भारत बायोटेक हैज साइंड एग्रीमेंट विद प्रेसिजा मेडिकामेंटोस ऑफ विच कंट्री फॉर सप्लाई ऑफ कोवैक्सीन। रिसेंटली आप डिस्कस किया कि इंडिया दी 2 वैक्सीन्स नूं अप्रूवल दी गई। ठीक है, एक कोवैक्सीन, एक कोविशील्ड। कोवैक्सीन है जी किसने बनाई, भारत बायोटेक ने बनाई। कोविशील्ड किसने बनाई, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई। ठीक है, तो कोविशील्ड के रिलेटेड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फैक्ट इंपोर्टेंट बनने, आप डिस्कस किए हुए हैं। भारत बायोटेक के अगर फैक्ट्स की गल करते हैं, तो भारत बायोटेक 1996 के बनाया गया सी। हैदराबाद के हैडकुआटर है,
और भारत बायोटेक के हैड की अगर आप गल करते हैं तो कृष्णा एम ईला इज दे हैड ने भारत बायोटेक दे। ठीक है, तो एक कंट्री की कंपनी है प्रेसीजा मेडिकामेंटोस। किहड़ी कंट्री की कंपनी है? ब्राजील की कंपनी है। ब्राजील कैपिटल ब्राजीलिया है, ये याद रखांगे। ब्राजील की कंपनी ने इंडिया के नाल एग्रीमेंट साइन किया, कोवैक्सीन भारत बायोटेक भेजेगी ब्राजील नूं। ठीक है जी, डायरैक्टली वन लाइनर दे विच याद रखांगे, इंपोर्टेंट रहेगा। भारत बायोटेक के पॉइंट्स ने जिहड़े इंपोर्टेंट बनणगे, काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, ये भी याद रखांगे। ठीक है जी, तो इस तो इलावा बाकी 4 कंट्रीज़ भी न्यूज़ दे विच ने, कुछ ना कुछ इंटरस्टिंग न्यूज़ इन्हां रिलेटेड डिस्कस करते हैं। तो सब तो पहले सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस कौन ने? मोहम्मद बिन सलमान। क्वेश्चन डायरैक्टली पूछा जाएगा, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान। इन्हां द्वारा अनाउंस किया गया एक सिटी कि जिस दे विच कोई कार, कोई रोड या कोई भी कार्बन एमिशन, किसी भी तरीके का कार्बन एमिशन नहीं होएगा। 170 किलोमीटर की एक सिटी अनाउंस की कि जे असीं इस तरीके नाल डेवलप करांगे इसनूं कि इत्थे किसी भी तरीके का कार्बन एमिशन नहीं होएगा। ठीक है, हालांकि न्यूज़ ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं सी। इस तरीके का क्वेश्चन उदों पूछा जाएगा जो पूरी डिटेल इस प्रोजैक्ट की शेयर की जाएगी। ठीक है, पर आप डिस्कस कर रहे हैं, फिर भी न्यूज़ पुरानी हो गई सी, पहले डिस्कस नहीं करनी सी, पर बाद दे विच मैंने इसमें देखा कि थोड़ी हाईलाइटेड है, दोबारा डिस्कस कर लेंगे। चलो इस करके आप डिस्कस कर रहे हैं। इस तो इलावा वियतनाम न्यूज़ इंपोर्टेंट रहेगी। इंडिया के डिफेंस सैक्रटरी अजय कुमार, डायरैक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडिया के डिफेंस सैक्रटरी कौन ने? तो अजय कुमार। इन्हां द्वारा 13वीं इंडियन वियतनाम डिफेंस सैक्रटरी सिक्योरिटी डायलॉग मीटिंग दे विच पार्टिसिपेट किया गया। ऑनलाइन मोड के उत्ते, वर्चुअल मोड के उत्ते ऑर्गेनाइज की गई। वियतनाम वालों डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर न्गुई छीन विनही इन्हां द्वारा पार्टिसिपेट किया गया सी। वियतनाम कैपिटल हनोई है, करंसी डोंग चलती है। सऊदी अरेबिया कैपिटल रियाद है, करंसी रियाल चलती है। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तीसरे ऐसे प्रेसिडेंट बनणगे जो कि एंड्रयू जॉनसन और बिल क्लिंटन तो बाद जिन्होंने इंपीचमेंट फेस करनी पै रही है। ये पॉइंट है थोड़ा जा, इत्थे आप डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इंपीचमेंट जिहड़ी इंपीचमेंट हुंदी है, यानी कि एक प्रेसिडेंट खुद ना हट के उसनूं जबरदस्ती हटाया जाना। ठीक है, यूएसए के प्रेसिडेंट नूं इंपीचमेंट फेस करनी पै रही है, अनाउंसमेंट की गई है। यूएसए के जिहड़ी सरकार है जिसनूं आपां कांग्रेस के नाम तो जानते हैं। ठीक है, अपने पार्लीमेंट किया जाता है तो उत्थे कांग्रेस कहे जाता है। ठीक है, कांग्रेस दे विच जिस तरीके नाल अपने 2 हाउस ने, लोक सभा राज्य सभा, उत्थे हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स और दूसरी है सैनेट, हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स और दूसरी है सैनेट। ठीक है, 2 हाउसेज ने। तो अनाउंसमेंट की गई कि इत्थे इंपीचमेंट मोशन पास किया जाएगा। ठीक है, और अगर यह इंपीचमेंट मोशन पास किया जाता है, वैसे तो इन्हों की जी टैनूअर है 20 तरीक को खत्म हो रहा है। 20 तरीक को अगर आप गल करते हैं 20 जनवरी की, तो 20 जनवरी को नवे प्रेसिडेंट उत्ते शपथ लैणगे, पर ये अपनी सीट छड्डण तो इनकार कर रहे हैं। इस करके इंपीचमेंट मोशन की अनाउंसमेंट की गई है। और अगर ये इंपीचमेंट पास किया जाता है तो यह पहले ऐसे प्रेसिडेंट बनणगे जिन्हां दे खिलाफ यूएसए दे विच इंपीचमेंट की गई है। ठीक है, हालांकि पहले 2 बार जो आप नाम डिस्कस किए ने, बिल क्लिंटन और एंड्रयू जॉनसन, इन्होंने भी इंपीचमेंट फेस किया, पर पास नहीं की गई सी, फाइनल पास नहीं हुई सी। इसी तरीके नाल अगर इंडिया की गल करते हैं, इंडिया के डायरैक्टली पूछा जा सकता है इंपीचमेंट के रिलेटेड आर्टिकल कितना है? प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट के रिलेटेड आर्टिकल है 61। इस तो इलावा इंटरस्टिंग फैक्ट कि इंडिया के इंपीचमेंट किन्ना दे लई की जा सकती है, तो सिर्फ 3 ऐसे परसन ने। एक तो प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और तीसरा है चीफ जस्टिस ऑफ किसी भी हाई कोर्ट के। सिर्फ 3 लोगों के लिए इंपीचमेंट की जा सकती है, याद रखेंगे। फ्रांस की गल करते हैं। फ्रांस अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन होस्टेड वन प्लैनेट समिट ऑन 11 जनवरी। 11 जनवरी नूं एक समिट ऑर्गेनाइज किया गया, वन प्लैनेट समिट। वर्चुअल मोड दे विच इसनूं शुरू किया गया, जिस दे विच बेसिकली प्लैनेट्स दे ईकोसिस्टम नूं रोकण दे लई किस तरीके नाल किया जाएगा वगैरह वगैरह। तो इन्वायरमेंट के लिए इसनूं ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, डायरैक्टली याद रखेंगे होस्ट किसने किया?
तो फ्रांस दे नाल मिल के यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन यूनियन ने इसनूं होस्ट किया। ठीक है, इसी दे नाल फ्रांस रिलेटेड ये भी याद रखांगे कि इसनूं होस्ट पहले चाइना ने करना सी, लास्ट ईयर करना सी, पर हुण इसनूं फ्रांस दोबारा किया गया। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा यूनाइटेड नेशन रिलेटेड न्यूज़ डिस्कस करते हैं। हु इज़ द सैक्रटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस दे सैक्रटरी जनरल कौन ने? यूनाइटेड नेशंस दे सैक्रटरी जनरल एंटोनियो गुटरस ने, पोर्तुगल तो बिलोंग करते हैं। ठीक है, और एक क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, क्योंकि इन्हों 5 साल की एक्सटेंशन दी गई है। इन्हों का टैनूअर खत्म हो रहा सी और इन्हों 5 साल की एक्सटेंशन दी गई है, यानी कि अगले 5 साल यही यूनाइटेड नेशंस दे की रहणगे, सैक्रटरी जनरल रहणगे। अच्छा, इस तो इलावा एक होर इंपोर्टेंट न्यूज़ इत्थे ऐड करनी रह गई है कि आर एम लोधा जस्टिस RM लोधा इंडिया के फॉर्मर चीफ जस्टिस ने, फॉर्मर चीफ जस्टिस इंडिया के RM लोधा, इन्हों कमेटी का हैड अपॉइंट किया गया। किहड़ी कमेटी का? जिहड़े फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली दे विच, फार्मर प्रोटेस्ट है, उस कमेटी की, उस प्रोटेस्ट की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, जिस दे लिए RM लोधा नूं अपॉइंट किया गया। याद रखांगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है जी, इसी दे नाल टेड्रोस एडानोम WHO के हैड ने। फैक्ट इंपोर्टेंट बनेंगे, कदों बनाया गया सी? 7 अप्रैल 1948 के विच, हैडकुआटर जेनेवा दे विच। एंटोनियो गुटरस UN के हैड, डेविड मलपास वर्ल्ड बैंक के हैड, उर्सुला वॉन डर लेन यूरोपियन यूनियन के हैड, क्रिस्टीना लगाडे ECB के हैड ने, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के हैड ने। ठीक है, इन्हों के फैक्ट इत्थे आप नहीं डिस्कस करांगे, रोज़ अपनी स्टडी क्लास चल रही है, उत्थे आप रोज़ किसी ना किसी चीज़ के फैक्ट डिस्कस करते हैं। नैक्सट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और UT, केड़ी स्टेट या UT द्वारा बैन किया गया है? की किया गया? बैन द एंट्री फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स एज अ प्रिकॉशनरी मेजर इन व्यू ऑफ द एमरजेंसी ऑफ बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू करके, एमरजेंसी दे करके की किया गया कि किसी स्टेट ने बैन कर दिता किसी भी परसन का आना। पहले भी यह बैन किया गया सी गोवा द्वारा, बर्ड फ्लू करके गोवा ने बैन किया है, पहले कोविड-19 करके बैन किया गया सी। याद रखांगे, अनाउंसमेंट किन्ना द्वारा की गई? गोवा द्वारा की गई है। ठीक है, याद रखांगे, इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं बाकी ऑप्शंस की, न्यूज़ दे विच ने डिटेल दे विच डिस्कस करते हैं। सब तो पहले गुजरात द्वारा करुणा अभियान के लिए SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अनाउंस किए गए हैं। ठीक है, पहले सब तो पहले करुणा अभियान डिस्कस करते हैं। की चीज़ है करुणा अभियान? बेसिकली की चीज़ है कि हर साल तुहानूं पता है गुजरात दे विच एक इंटरनेशनल काइट फैसटिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो काइट फैसटिवल दे विच की हुंदा कि लोगों द्वारा जी डोर यूज़ की जाती है, उस दे विच पक्षी ने जिहड़े बर्ड्स वगैरह ने वो फस जाते हैं और उन्होंने डैथ हो जाती है, कटे जाते हैं, क्योंकि डोर इस तरीके की यूज़ की जाती है। ठीक है, तो इस दे लई गुजरात सरकार द्वारा हर साल करुणा अभियान लॉन्च किया जाता है। ठीक है जी, जिसके अंदर डिफरेंट टीम्स बनाई जांदियां ने और लोगों को अवेयर किया जाता है। इस तो इलावा पक्षी, अगर किसी की पक्षी की कोई हर्ट वगैरह पक्षी, यानी कि किसी की चोट लग्या पक्षी इन्होंने मिलता है तो उसका ट्रीटमेंट वगैरह भी किया जाता है। ठीक है, अपने लिए सिंपली इंपोर्टेंट बनेगा करुणा अभियान किन्ना दा? गुजरात का। ठीक है, सिंगल स्टडी क्वेश्चन इत्थों पूछा जाएगा। नैक्सट है लद्दाख दे विच 2 इंपोर्टेंट न्यूज़। एक तो फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल, पहला आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल लद्दाख दे विच नुब्रा वैली दे विच शुरू किया गया। ठीक है, दूसरा खेलो इंडिया जंस्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल, खेलो इंडिया जंस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल, ये भी कित्थे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? लद्दाख दे विच ऑर्गेनाइज किया जाएगा 18 जनवरी तो। ठीक है जी, इसी तरीके 16 जनवरी तो याद रखांगे गोवा दे विच ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। गोवा के बारे आप डिस्कस भी किया है। तो गोवा दे विच किहड़ा फैसटिवल शुरू किया जा रहा है? इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल ऑफ इंडिया 51st एडिशन। नैक्सट है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर N बीरेन सिंह द्वारा वर्चुअल चैरी ब्लूजम फैसटिवल। हुण इत्थे न्यूज़ जी काफ़ी इंपोर्टेंट बनेगी, क्योंकि हर साल जो चौथा एडिशन सीगा, अगर पिछले साल की गल करते हैं 4th एडिशन चैरी ब्लूजम फैसटिवल का
कित्थे ऑबजर्व किया गया सी? मेघालय दे विच, मेघालय के शिलोंग दे विच। पर वर्चुअल तौर पर चैरी ब्लूजम फैसटिवल इस साल मणिपुर लॉन्च कर रहा है। मणिपुर के माओ सेनापति डिस्ट्रिक्ट के इसनूं शुरू किया गया। चैरी ब्लूजम एक फेमस फ्लावर है, इंपोर्टेंट रहेगा। तमिलनाडु, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर E.K. पलानास्वामी द्वारा अनाउंसमेंट की गई है 2 GB फ्री डाटा प्रोवाइड किया जाएगा किन्हों 9 लाख कॉलेज और पॉलीटैक्निक स्टूडेंट्स को। बेसिकली जनवरी तो अप्रैल तक के लिए यह अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है जी। पंजाब, पंजाब द्वारा याद रखांगे आप स्कीम डिस्कस की सी सैनिटरी पैड्स, ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀ इनिशिएटिव के अंदर सैनिटरी पैड्स अनाउंस किए गए सी। तो इस दे लई वैंडिंग मशीनस कहा गया कि लगाई जाएगियां स्कूल्स दे विच। वैंडिंग मशीनस, सैनिटरी पैड वैंडिंग मशीनस पंजाब सरकार लगाएगी स्कूलों के विच। नैक्सट है चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा नहीं सॉरी चंद्रभागा, चंद्रभागा और तेलसारी, चंद्रभागा और तेलसारी बीचीज़ ने ये किहड़ी स्टेट दे विच लोकेटेड ने? किहड़ी स्टेट दे विच ने? तो उड़ीसा दे विच ने। ठीक है, डायरैक्टली इसी तरीके नाल स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बाद दे विच कुछ बच्चे कहते हैं कि सर स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिया गया तो स्टैटिक की कोई तैयारी नहीं करवाई गई। स्टैटिक क्वेश्चन करंट अफेयर्स दे विचों ही पूछे जाते हैं। अज का जिहड़ा एग्जामिनर है वो काफ़ी चालाक है, वो क्वेश्चन इसी तरीके नाल इत्थों कढदा न्यूज़ दे विचों। चंद्रभागा न्यूज़ दे विच ने, क्यों न्यूज़ दे विच ने डिस्कस करते हैं। इस तो इलावा बाकी स्टेट्स न्यूज़ दे विच ने, इन्हां रिलेटेड भी डिस्कस करते हैं। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक द्वारा अनाउंसमेंट की गई है टू डेवलप चंद्रभागा और तलसारी बीच विद वर्ल्ड क्लास एनिमिटीज़, ताकि डोमैसटिक और फॉरन टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके। तो इसका की मतलब है कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने, फॉर एग्जाम्पल अगर तुहानूं याद होए आप रिसेंटली डिस्कस किया कि 8 बीच नूं, इंडिया के 8 बीच नूं की दिता गया, ब्लू टैग दिता गया। ठीक है, जिस दे विच आपां ने की कहा सी कि इन्हां बीचीज़ नूं सब तो अच्छा बीच कहा गया, ब्लू टैग दिता गया, वर्ल्ड लैवल पर रिकोगनाइज किया गया। जिस दे विचों उड़ीसा का ही एक बीच सीगा गोल्डन बीच, जो कि मैंने कहा सी सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट है गोल्डन बीच। इसके नाम करके काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगा। हुण इसी तरीके नाल इस उन्हां बीचीज़ नूं भी रिकोगनाइजेशन दिलवाउण दे लई और टूरिज़म नूं इंक्रीज़ करन दे लई चंद्रभागा और तलसारी बीच नूं डेवलप किया जाएगा। नैक्सट है 2 इंपोर्टेंट मिनरल्स इंडिया दे विच पाए गए। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सब तो पहले आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वैनेडियम लभ्या। रेयर मैटल है एक वैनेडियम, बेसिकली ये स्टील वगैरह के नाल यूज़ किया जाता है, स्टील नूं मजबूत बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और यह कित्थे पाया गया? अरुणाचल प्रदेश दे विच पाया गया। अरुणाचल प्रदेश के दीपो और तमांग एरियाज़ दे विच पाया गया। इंपोर्टेंट बनेगा, याद रखांगे कि वैनेडियम किहड़ी स्टेट दे विच पाया गया। ठीक है, इस तो इलावा किन्ना नूं लभ्या ये? तो आर्कोलॉजिकल सर्वे नूं लभ्या। तो 1861 आर्कोलॉजिकल सर्वे बनाया गया सी, न्यू दिल्ली दे विच हैडकुआटर है। और हैड की अगर आप गल करते हैं वी विद्यावती इस दे हैड ने। इस तो इलावा अगर वैनेडियम पूछा जाता है सब तो ज़्यादा किहड़ी कंट्री दे विच पाया जाता है? तो चाइना। वैनेडियम सब तो ज़्यादा चाइना दे विच पाया जाता है। कर्नाटका, इंडिया द्वारा पहला लीथियम रिजर्व लभ्या गया कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट दे विच। इत्थे थोड़ा डिस्कस करते हैं। तुहानूं याद होएगा आप डिस्कस किया सी एक न्यूज़ कुछ दिन पहले कि रिफाइनरी लीथियम रिफाइनरी लगाई जाएगी। इंडिया की पहली लीथियम रिफाइनरी गुजरात दे विच। उदों आप डिस्कस किया कि इंडिया के लीथियम नहीं पाया जाता। ठीक है, तो लीथियम नूं बाहरली कंट्रीज़ दे विचों इंपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, पहले लीथियम आप पूरी तरीके नाल बनया बनाया इंपोर्ट करते सी, हुण आप रॉ लीथियम नूं इंपोर्ट करांगे और रिफाइनरी लगाई गई है गुजरात दे विच, उत्थों इसनूं सैट करके यूज़ किया जाएगा। ठीक है, हुण कर्नाटका दे विच लीथियम पाया गया, हालांकि बहुत घट पाया गया है, पर पाया गया इस करके इंपोर्टेंट रहेगा कित्थे पाया गया, किहड़ी स्टेट दे विच? तां कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट दे विच। नैक्सट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे द्वारा एक मुंबई कोस्टल रोड टनल बनाई जा रही है, जिस दे लई जिहड़ी मशीन यूज़ की जा रही है उसका नाम है मालवा। ठीक है, डायरैक्टली मशीन का नाम पूछा जा सकता है या पूछा जा सकता है कि मालवा की चीज़ है। तो यह एक
ਟਨਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਟਨਲਸ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਵਾਈਡੈਸਟ ਟਨਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿਪਲੀ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਹੈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਟੂਰਿਸਟ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਟੂਰਿਸਟ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर वाचिंग द सेशन। गुड बाय।